Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the 6th lecture of Kinematics and आज के लेक्चर में we're going to start relative motion. तो क्विकली आउटलाइन दे देता हूँ क्या क्या करेंगे. पहले तो relative motion का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर थोड़ा एप्लीकेशंस करेंगे. Then we're going to apply relative motion to the concept of to the situation rather of when you have two projectiles or two bodies in free fall. फिर we look at the concept of dropping in the context of relative motion once again. और finally rain problems करेंगे. This is all part of the first lecture of relative motion. ठीक. So I hope you are as excited as I am. Let's go. So सबसे पहले तो what is relative motion and why are we even needing it in order to do any sort of kinematics problem? तो बहुत ही simple example से पहले explain करता हूँ. Just imagine you have two cars. दो कार है. Let's say you're sitting in this car. Let's say you're sitting in car A and you're observing car B. So let us say कि तुम्हारा car is going at 20 meter per second and car B is traveling at 30 meter per second. ठीक है. Now you want to calculate कि according to you what is the velocity of car B? That is the question that you want to answer. तो उसका मतलब क्या, व्हाट डू यू इवन मीन कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ कार बी का मतलब क्या है. सो अभी तक जो मैंने बोला है 20 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, वो कौन बोल रहा है, हु इज ऑब्जर्विंग दैट. दैट इज अंडरस्टूड दैट इट इज समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. Someone standing on the ground that is observing the velocity of car A to be 20 meter per second, velocity of car B to be 30 meter per second. वो क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा कि कार A has velocity 20 meter per second. It is understood कि we are talking about an imaginary observer standing on the ground and observing these cars. So वो जो observer है वो standing on the ground, उसको ground frame भी बोला जाता है. So frame of reference is just another word for observer. ठीक है. तो observer is some, you can say it's an imaginary person. Technically speaking, frame of reference refers to the coordinate axis attached to the observer. What do I mean by attached to the observer? मतलब अगर observer is on the ground, तो origin खुद पे रखेगा वो observer, and that observer will measure all the distances and the coordinates of all the cars with respect to himself or herself. ठीक है. तो ये जो frame of reference है, as far as we are concerned, it just means it's just a fancy word for an observer who's measuring all the quantities. So ground frame का मतलब क्या है? Just imagine अपने मन में कि observer is standing on the ground. ठीक है. तो ground frame में velocities 20 and 30 दिया गया है अपने को. Now I want to calculate, I want to find the velocity of car B in the frame of A. ये phrase, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं. मतलब A is now the observer. A में जो बैठा है, if you are sitting in car A, you want to measure the velocity of car B. That is our aim right now. Okay, so what do you even mean by velocity of car B? तो कैसे measure करोगे? If you are sitting in car A, what you will do is कोई इंस्टेंट पे you will measure the distance of car B. Then थोड़े टाइम बाद you will again measure the distance of car B. Then वो subtract करके you will get car B कितना आगे गया. That is the displacement of car B according to you. टाइम से डिवाइड करो तो तुमको velocity आ जाएगा according to you. You are sitting in car A. So in time t, car A will travel 20t. कार B will travel 30t. I'm assuming एकदम बेसिक एग्जांपल जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो ये कार A will travel 20t in time t, कार B will travel 30t in time t. तुमको क्या लगेगा कार B आगे कितना गया? The distance between you are measuring from yourself the position of B. You are in car A and you're measuring the position of B.
जो वो लेंथ है ए और बी के बीच में, वो कितने से बढ़ा, कितने से चेंज हुआ, 30t माइनस 20t 10t। ये जो लेंथ है 20t से कम हुआ और 30t से बढ़ गया, ओवरऑल कितना चेंज हुआ लेंथ बिटवीन ए एंड बी, 10t। वो कैसे है, सबट्रैक्ट करके है। So you will say that velocity of b as measured by a. So this symbol b slash a, this is basically just a notation for velocity of b as measured or observed by a, or also you can write it velocity of b in the frame of a. ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके हैं लिखने के, सेम थिंग। और velocity of b relative to a. So what you will do is you will write velocity of b relative to a would be कितना displaced कितना हुआ b as observed by a, 10t हुआ। So 10t divided by time interval 10, तो ये मेरा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। Effectively what we have done here is we have done 30 minus 20, वही क्या ना 30t minus 20t divided by t। And in general what we have done is velocity of b as observed by a is velocity of b minus velocity of a, where these velocities are measured in the ground frame. तो ये मैंने वन डायमेंशनल केस कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल बताया, वेरी सिंपल एग्जांपल, बट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस विल कम इन वेक्टर फॉर्म इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव राइट नाउ इन द जनरल सिचुएशन। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन कि कार बी का जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है वो 30 है, बट इफ समवन एल्स व्हिच इज आल्सो ऑलरेडी मूविंग इज ऑब्जर्विंग कार बी, हाउ विल दैट पर्सन मेजर द वेलोसिटी? व्हाट डज दैट इवन मीन? You measure the position of B with respect to car A. Car A is the observer. Car A will measure the position of B. Car A will measure the change in position of B. They divided by the time. That is the velocity of car B according to A. ठीक है? कार A में जो ड्राइवर बैठा है या बैठी है, with respect to themselves, what will be the velocity of car A? 0. According to you, you are sitting in car A. You're sitting in car A, तुमको क्या लगेगा, कार आगे कार के अंदर देखो कुछ मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू यू। तो कार A is stationary according to the person sitting inside it, and that is exactly what this equation will also tell you. Velocity of A with respect to A would be VA minus VA. मैथमेटिकली भी वही आएगा, ठीक है। So with respect to the observer itself becomes stationary. ठीक है, देख लो। Now we are going to derive this equation, and not only for velocity, we are going to do it for displacement, acceleration also in the general situation. देखो, so in general, suppose I have particle A, particle B. This is position vector of A. This is position vector of B, और ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सेस भी हो सकता है। मैंने जेड एक्सेस बस ड्रॉ नहीं किया। ए एंड बी नीड नॉट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंड दिस वेक्टर, ये ध्यान से देखो, ये वेक्टर जो है दैट विल बी पोजीशन ऑफ बी एज मेजर्ड बाय ए। ए विल मेजर द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन ये वेक्टर हो गया। अच्छा, now can I have a relation between these three vectors? Yes, I can. Triangle law. तो देखो क्या बन जाएगा। Can I say RA plus RB slash A, मतलब RB relative to A as measured by A. ठीक है। So the position of B as measured by A would be position of B minus position of A. तो ये जो positions है, they are measured with respect to this coordinate axis, which may be usually is the ground frame. कुछ बोला नहीं गया, मतलब वो ground frame में। तो there is some observer standing here and observing all both the particles. ऐसे। अच्छा, now I know velocity vector is this rate of change of displacement also equal to rate of change of position vector, because displacement vector, एक infinitesimal displacement vector is nothing but the change in position vector. This is infinitesimal displacement vector is equal to the change in position vector. First lecture में देखा था हम लोगों ने, displacement is change in position vector, ठीक है। So therefore these two are equal. इसको just dt से divide कर दूंगा दोनों तरफ। तो मैंने अगर दोनों
LHS एंड RHS को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. तो देखो क्या बन जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर? वेलोसिटी. बट अभी कौन सा पोजीशन वेक्टर है? ऑफ B एज मेजर्ड बाय A. तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ B एज मेजर्ड बाय A. सो आई विल हैव वेलोसिटी ऑफ B एज मेजर्ड बाय A. पोजीशन वेक्टर ऑफ B का डेरिवेटिव वेलोसिटी ऑफ B minus similarly velocity of A. So once again, B and A are with respect to some frame. Usually, if nothing has been said, it means a ground frame. And if I differentiate this again, तो क्या मिलेगा मुझे? Acceleration of B with respect to A is acceleration of B minus acceleration of A. Velocity का derivative acceleration. दोनों LHS RHS को differentiate किया. और अगर इसको वापस इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा मुझे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A. सो ऑल दीज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दीज क्वांटिटीज ऑल डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. ऑलराइट, देख लो, दीस आर द जनरल इक्वेशंस. फिर इसका एक थोड़े क्वेश्चंस भी देखते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं इसको क्वेश्चंस में, एंड व्हाई वी नीड रिलेटिव मोशन. Any question, in fact, let me just tell you, any question in physics or any situation in physics can be solved in the ground frame without any need to change the frame of reference. अगर तुमको relative motion का concept पता भी नहीं तो भी तुम लोग सारा questions कर सकते हो. You don't need to change frame of reference. Why we study relative motion and why we use it in questions is for mathematical convenience. Often we will find कि some questions are solved very easily by changing the frame of reference. Instead of observing from a ground frame, if you observe from some other frame, the problem becomes very mathematically easy and very easy to solve. ठीक है, तो हम लोग वो सब अभी देखेंगे. जस्ट पहले ये देख लो, कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's do a question. देखो, दो कार्स है, कार A, कार B. कार A का velocity at this instant is given to us as 20 meter per second to the right, accelerating at 2 meter per second squared. कार B velocity is 30 to the left and acceleration is 3 meter per second squared to the left. And दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 750 मीटर्स दिया हुआ है. पूछा गया फाइंड द टाइम टू कोलाइड. तो ये जो क्वेश्चन है वो ग्राउंड फ्रेम से काफी इजीली किया जा सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज राइट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, राइट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, ऐड देम एंड इक्वेट इट टू 750. करेक्ट. But I have chosen this particular example just to show you how to apply relative motion. We'll have more complicated questions where relative motion will make it very easy. This particular question you can solve it in ground frame or you can use relative motion as I will do right now. दोनों से similar effort ही है. I just want to show you कैसे apply किया जाता है relative motion. Then we'll go on to more complex questions. So अगर मैं कोई एक के फ्रेम में जाऊं, ये सब जो वैल्यूज दिया गया है they are all in the ground frame. So if I go in the frame of one of the cars, let me go in the frame of car B. Excuse me. If I go in the frame of car B, the reason relative motion is useful here, and in most questions क्यों useful होता है? Because often you know the displacement of the cars or the objects not in the ground frame but with respect to one of the cars. कहने का मतलब क्या है कि just imagine you are sitting in car B. तुम B में बैठे हो, तुमने initially देखा A is at 750 meters. Finally A and B collide. तो तुम बैठे हो, you see, just imagine, you see car A 750 meters away initially. Eventually you see car A hitting you. तो तुम क्या बोलोगे? कार A कितना ट्रैवल किया? 750 ट्रैवल किया ना. अकॉर्डिंग टू यू 750 पहले दूर था, अभी जीरो डिस्टेंस पे आ गया, तो कितना ट्रैवल किया कार ए? 750. So 750 is the displacement of car A according to you, which is car B. So that is why relative motion is useful often, because I can directly write displacement of car A with respect to B is 750. I do not know the displacement of car A in the ground frame, क्योंकि कहीं बीच में मिलेंगे. Remember, displacement of a particle depends on the frame of reference. तो you don't have to be surprised that ground frame में displacement कम है कार A का, but B के frame में displacement 750 है. Of course, it depends on the frame of reference.
So displacement of car A with respect to B 750. I have taken right hand side as positive. So B के frame में A is going to the right and covering 750 in order to reach B. Okay. What about velocity? So I know velocity of A with respect to B. Can I write it as velocity of A minus velocity of B? अब सब कुछ one dimension में है, right hand side is positive. तो velocity of A with respect to B. वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड फ्रेम में कितना है 20 आई कैप है, अभी आई कैप ड्रॉप कर रहा हूं मैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड फ्रेम में कितना -30 में, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, तो कितना हो गया ये 50 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 टू द राइट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज -3, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ फॉरगेट ग्राउंड फ्रेम, बी के फ्रेम में यू नो एवरीथिंग अबाउट ए, इनिशियल वेलोसिटी, यू नो द डिस्प्लेसमेंट दैट ए हैज टू कवर एंड यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ ए. अब मुझे टाइम निकालना है. थिंक बैक टू सिंपल काइनेमैटिक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. तुमको अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम कैसे निकालोगे? यू कैन यूज वन मेथड इज टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कर लो. फ्रेम ऑफ बी में I know initial velocity of A, I know acceleration of A, I know displacement of A. Can I write displacement is qt plus half at square? I'm writing for car A in the frame of B. So all of this is for car A as measured by B. टाइम जो है वो तो हर फ्रेम में सेम होता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज देयर इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो जो अपने सिलेबस में है, टाइम इज सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ, आइंस्टाइन शोड दैट इज एक्चुअली नॉट द केस. थोड़ा टाइम चेंज होता है, टाइम इंटरवल भी चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट दैट इज सो स्मॉल फॉर अस, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट इन आवर सिलेबस. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज द सेम इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 750 हो गया. अभी तो मैथ्स है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 50 प्लस 50t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना 5, ठीक है. तो ये सॉल्व कर लो यार खुद ही, क्वाड्रेटिक है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम. 10 सेकेंड्स आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है. यू विल गेट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव रूट, यूज द पॉजिटिव रूट. So here mathematically it's not too much of an advantage compared to ground frame. Ground frame में भी लिखोगे तो कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. But I wanted to show you why relative motion is used and will be used in more complex problems, because often you know the displacement of one object with respect to another. Ground frame में नहीं पता होता, but दूसरे के frame में पहले वाले का displacement पता होता है, ठीक है. ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's do a question from Pathfinder. Build up your understanding. Question number 35, Kinematics chapter का. If you want, you can pause the video, read the question on your own and solve it. ठीक है. I'll just explain the question as well. तो मेरे पास एक ट्रेन है जिसका length L है. A and B are the ends of the train and it's traveling with a constant velocity V. There is a boy on the platform who's running at 10 kph. So boy covers the length of the train, goes from A to B. Boy runs and goes from A to B in 30 steps, and each step is 1 meter. मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर्स. वैसा दैट्स ऑल. मतलब ईच स्टेप इज 1 मीटर, 30 स्टेप्स कवर किया, तो 30 मीटर्स कवर किया किसमें, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है. वो प्लेटफॉर्म पे 30 मीटर्स कवर किया व्हाइल ही हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. फिर वंस ही रीचेस बी, ही अगेन रन्स बैक इमीडिएटली विद 10 kph सेम स्पीड बट फ्रॉम बी टू ए, एंड दिस टाइम कवर्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन 20 स्टेप्स. तो फिर से 20 मीटर्स कवर किया व्हाइल गोइंग फ्रॉम बी टू ए. अंडरस्टैंड दैट when the boy is traveling from A to B, वो लेंथ L नहीं कवर कर रहा, बिकॉज ट्रेन भी आगे मूव कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म पे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ज्यादा L से, ठीक है. ओके, सो इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई, कर लो, एंड देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. पूछा क्या वैसे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पूछा. एक्सक्यूज मी, ठीक है. सो सबसे पहले तो I know displacement of the boy in the ground frame कितना है, 30 steps in the first situation, 30 steps into 1 meter, 30 meters है, और कितना स्पीड पे जा रहा है 10 kph. तो कितना टाइम लगेगा, the time taken to go from A to B
in the first situation is 30 meters displacement in the ground frame divided by speed in the ground frame, और time तो same रहता है. Now I'm going to go in the train frame. Why? Because train के frame में मुझे पता है displacement A to B is L. Train के frame में if you're sitting in the train, you're observing the boy go from one end of the train to the other end of the train. That's it. तो displacement कितना हो गया boy का? L. तो can I just say displacement of boy with respect to train, BT मतलब boy with respect to train is L. ठीक है. Can I write that L as speed of the boy with respect to train? Now train is going with speed v, boy is going with speed 10 kph. Subtract करके मेरे को relative speed आ जाएगा. Velocity of boy with respect to train कितना है? Velocity of boy 10 minus velocity of train v. ये दोनों ground frame. So can I write displacement is equal to velocity into time? और time कैसे लिखूं मैं? टाइम तो इजी है मुझे लिखना. व्हाई? बिकॉज आई नो द टाइम इन द ग्राउंड फ्रेम. बिकॉज आई नो ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर्स. कितने स्पीड पे कवर किया, 10 kph. तो दिस विल बी 30 मीटर्स डिवाइड बाय 10 kph. तो यहाँ पे जस्ट यूनिट्स का ध्यान रखना. एक बार यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगा. यू डोंट इवन हैव टू कन्वर्ट. ये 10 इज 10 kph, तो ये भी kph में है, तो ये kph कट जाएगा और लेंथ मुझे मीटर्स में आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. And second situation बहुत simple है. From A to B, from B to A now, फिर से magnitude of displacement कितना होगा? L. With respect to train. Train में बैठ के देखोगे तो boy is going from the front end to the rear end, back end. कितना length cover किया boy ने according to someone in the train? L. तो once again displacement of boy with respect to train is L. Left direction में तुमको चाहिए तो you can just imagine left is positive for the second situation. I've just chosen left as positive. मेरा choice है. The displacement of boy with respect to train should be equal to velocity of boy with respect to train into time. So what is velocity of boy with respect to train? Velocity of boy is 10 to the left, positive 10, minus velocity of train is minus v. Opposite direction में है तो vector subtraction में add हो जाएंगे magnitudes. तो 10 plus v all in kph into time. टाइम भी बहुत सिंपल है. कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड सिचुएशन में? 20 स्टेप्स इनटू 1 मीटर, 20 मीटर्स कवर किया. कितना स्पीड पे? 10 kph पे. तो 20 मीटर्स डिवाइड बाय 10 kph. ठीक है, दैट्स इट. सो ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व फॉर L एंड V. ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बहुत सिंपल है एक्चुअली. जस्ट इक्वेट दिस टू राइट हैंड साइड्स. तो V आ जाएगा, 10 kph कट जाएगा. Just remember this V is in kph because 10 is in kph. So I'll have 10 minus V into 30 should be equal to 10 plus V into 20. तो V का वैल्यू सॉल्व करके 2 kph आ जाएगा. Once you have V तो फिर तो L कुछ नहीं, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो यार. V का वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो तो 10 minus 2 8 और ये kph कैंसिल हो जाएगा. तो 30 by 10 3 into 8 24. वो मीटर्स में आएगा बिकॉज kph कैंसिल हो रहा है. L will be in meters. वो ध्यान रखना यूनिट्स का. 24 मीटर्स आ जाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है बट आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. ठीक है, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट वेयर रिलेटिव मोशन इज रियली वेरी यूजफुल. तो अगर मेरे पास 2 बॉडीज इन फ्री फॉल है तो फ्री फॉल का मतलब क्या था कि बोथ द बॉडीज हैव द सेम एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड्स. तो अगर 2 बॉडीज फ्री फॉल में है, एंड रिमेंबर फ्री फॉल डजंट मीन कि बस गिर रहा है, वो तो इंग्लिश मीनिंग है. फिजिक्स में फ्री फॉल का मतलब है मोशन अंडर ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो वेलोसिटी कैसे भी हो सकता है. प्रोजेक्टाइल इज आल्सो फ्री फॉल. तो यहाँ पर अगर कुछ पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, कोई भी वेलोसिटी कोई भी रैंडम डायरेक्शन में है, डजंट मैटर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B, बट दोनों का एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड्स होगा. नाउ रिलेटिव मोशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज acceleration of A with respect to B 0. दोनों का G सेम है तो सबट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा. एंड दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का 0 है तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B will be constant. तो ये तो एक्सेलरेशन 0 होगा. Now velocity vector is a constant. The implication is कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही बट डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. तो इन द फ्रेम ऑफ B the motion of A
इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन बिकॉज उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में, तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इन द फ्रेम ऑफ बी. एंड दिस इज वेरी यूजफुल स्पेशली व्हेन यू हैव टू प्रोजेक्टाइल्स. ग्राउंड फ्रेम में वो प्रोजेक्टाइल का शेप तो पैराबोला होता है, कर्व पाथ, बट कोई एक के फ्रेम में जाओगे तो दूसरे का शेप, ट्रैजेक्टरी का शेप स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन मोशन इज मच इजियर टू एनालाइज एंड टू सॉल्व. दैट इज व्हाई रिलेटिव मोशन प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल व्हेन यू हैव टू बॉडीज इन फ्री फॉल. दिस ऑल्सो implies कि जो शेप है ट्रैजेक्टरी का, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मैं लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट है. The shape of trajectory also depends on frame of reference. Velocity, displacement, acceleration vectors तो पता ही है अपने को, depends on frame of reference. मतलब shape भी depend करता है because you can clearly see in this example कि A और B के का motion तो parabola होगा, but B के frame में A का motion straight line होगा because the velocity vector is a constant, so direction of motion of A is a constant. So let's just quickly use or look at an example on this. Simple सा example, vertical free fall वाला example देखते हैं, then we'll go on to more complicated cases of projectiles. So suppose मेरे पास let's say ये B है, ये A है. Let's say this is projected with 30 meter per second. This is projected vertically upwards with 20 meter per second. दोनों के बीच का distance is 100 meters. और पूछा गया find the time when they collide. Ground frame में भी कर सकते हो, बट यहां पे बहुत इजी है यूजिंग रिलेटिव मोशन बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, तो वो तो बॉदर, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट. अगर कोई भी एक के फ्रेम में जाओ, एक के फ्रेम में बी का वेलोसिटी कितना है? 50, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना. तो एक के फ्रेम में बी का वेलोसिटी 50 है, एक के फ्रेम में बी को कितना ट्रेवल करना है ए से कोलाइड करने को? 100. तो टाइम कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय 50. बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है ना, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करके टाइम आ जाएगा. I don't have to worry about any acceleration. फिर से क्विकली रिपीट करता हूँ. एक के फ्रेम में B has to travel 100 meters, एक के फ्रेम में B का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड करके टाइम 2 seconds. ठीक है. So this is a very simple example, but you can see the powerful use of the concept of relative motion. That is why we are studying it. Okay, देख लो. फिर थोड़ा सा projectiles के बारे में बात करते हैं. अच्छा, now let's look at a very good question. मेरे पास दो particles A and B and they are projected. A is projected at 20 meter per second at 45 degrees to the horizontal. B is projected with velocity u horizontally to the left. और ये 10 meters height दिया, ये 20 meters. Ground नहीं है. Find the time to collide. नहीं, sorry, find u such that they collide. Ground नहीं है, मतलब basically they can also collide this way. वो original horizontal level के नीचे भी collision हो सकता है. ठीक है. So in order to collide, now that we know कि B के frame में, कोई भी एक particular frame में जा रहा हूँ मैं, कि B के फ्रेम में पार्टिकल A का मोशन स्ट्रेट लाइन होने वाला है. सो इन द फ्रेम ऑफ B, तो B के फ्रेम में A का मोशन स्ट्रेट लाइन होने वाला है. अब अगर स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी जो है A का, वो अगर ऐसा है तो कोलिजन नहीं होगा, ऐसा है तो कोलिजन नहीं होगा. कैसा होना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ A इन द फ्रेम ऑफ B हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स B. B के फ्रेम में B तो स्टेशनरी है ना, खुद के फ्रेम में खुद तो स्टेशनरी हो जाता है. So velocity of A has to be directed towards B. This velocity किसके फ्रेम में? B के फ्रेम में. So this is velocity of A with respect to B. So now that we know this is this angle, let's say is theta, because मुझे पता नहीं velocity of A with respect to B का एंगल क्या है. ग्राउंड फ्रेम में पता है 45 डिग्री. तो ये tan थीटा का वैल्यू मुझे पता है by geometry. तो can I write tan theta is half by geometry, but can I also write it as the y component by x component of this vector? हो गया. अभी बस सॉल्व करना है. देखो, केयरफुली लिखना है और सॉल्व करना है. वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का y कंपोनेंट कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ A का y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ B का y कंपोनेंट. रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B वेक्टर इज VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर. तो उसका y कंपोनेंट में कैसे लिख सकता हूं? इंडिविजुअल y कंपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन. अच्छा, A का y कंपोनेंट कितना है? 20√2 sin 45, तो 20 हो गया. लेट मी टेक x एक्सिस दिस वे, y एक्सिस दिस वे.
20 रूट टू साइन 45 20 हो गया वेलोसिटी ऑफ ए का वाई कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का वाई कंपोनेंट कुछ है नहीं, बी इज हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट 20 रूट टू कॉस 45 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे एक्स 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 आएगा डिनोमिनेटर के लिए, वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट माइनस यू, तो ध्यान रखना साइन का। बस सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। That's it. So B has to be thrown horizontally at 20 मीटर पर सेकंड so that they collide. So ऐसे collision problems हैं, बहुत सिंपल है दो प्रोजेक्टाइल के केस में। Go in the frame of one particle, write down the velocity vector of the other particle. उसका डायरेक्शन should be towards B, तो मैथमेटिकली जस्ट tan थीटा ज्योमेट्री से मिलके उसको y कंपोनेंट y x कंपोनेंट कर दो और सॉल्व कर लो, दैट्स इट। देख लो, वैसे अगर द पार्टिकल्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये u1 ये u2 ये θ1 ये θ2, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर देम टू कोलाइड। तो इसमें रिलेटिव मोशन यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यू कैन जस्ट से कि इन ऑर्डर टू कोलाइड दे शुड हैव द सेम y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम हाइट पर मिलना है, सेम y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना है, दोनों का y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन सेम है g डाउनवर्ड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी सेम होना पड़ेगा। सो कैन आई जस्ट राइट u1 sin θ1 is u2 sin θ2 फॉर कोलिजन, सिंपल। इफ दे गिव यू दिस लेंथ एंड दे आस्क यू कितना टाइम में दे विल कोलाइड, then relative motion is useful because I can say, can I write velocity of, if they are colliding, then velocity of A should be directed towards B in the frame of B, है कि नहीं? Frame of B velocity of A with respect to B should be directed towards B. U use कर लेता हूँ अल्फाबेट, और वो कौन सा डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ना, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो वैसे भी कट जाएगा, वही अपन ने कंडीशन सेट किया। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, बी तो स्टेशनरी है, ए हैज टू ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हैज टू ट्रैवल अ लेंथ ऑफ एल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट इज u1 cos θ1 टू द राइट, वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट इज u2 cos θ2 टू द लेफ्ट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। दिस इज द टाइम टू कोलाइड, सिंपल, ठीक है। और जब उसका वेरिएशन अगर दोनों सेम वर्टिकल लेवल पर है एंड दीस एंगल्स आर गिवन, नाउ व्हाट इज द कंडीशन टू कोलाइड, The condition to collide is that दोनों का भी horizontal displacement same होना है, horizontal direction में तो कोई acceleration है नहीं, तो horizontal initial velocity same होना पड़ेगा, so that in the same time interval they perform they cover the same horizontal displacement. तो just equate the initial horizontal components of velocity, that's it. फिर अगर height difference दिया, time to collide पूछा, तो यार you can do it on your own now, same logic, देख लो। Now let's look at a slightly different question, but काफी similar logic है जो अपन यूज करेंगे। I have two particles 1 and 2 और दोनों को प्रोजेक्ट किया गया, एक 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्रीज, एक 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्रीज इन दिस मैनर, और दोनों का बीच का इनिशियल डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, ठीक है। अब कोलिजन की नहीं बात कर रहा हूँ, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। कोलिजन तो होगा ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी कंडीशन देखा फॉर कोलिजन, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है दे शुड हैव द सेम वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटीज, जो यहाँ पर तो है नहीं, कोलिजन तो नहीं होने वाला। In order to find the minimum distance between 1 and 2, one long method is to write down the distance, the position vectors of both of them, subtract in the ground frame, get the distance between them as a function of time, then use calculus to minimize it, get the time, substitute it back, और फिर distance मिलेगा। तो वो लंबा मेथड, we are not going to do that because we know we have studied relative motion। कोई एक के फ्रेम में अगर जाएंगे and you are going to try it out now, I'm going to ask you to try it out। बस एक चीज बताता हूँ, अगर 2 के फ्रेम में जाएंगे
जस्ट फिगर आउट द वेलोसिटी ऑफ 1. अगर वेलोसिटी ऑफ 1 ऐसा है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा. दैट इज अ पावरफुल रोल दैट रिलेटिव मोशन हैज टू प्ले, बिकॉज नाउ 2 के फ्रेम में 1 इज परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड नाउ आई नो हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन. वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, यही तो डिस्टेंस चाहिए अपने को. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, ज्योमेट्री यूज करना है. ठीक है, ट्राई कर लो, ट्राई इट आउट एंड देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है, सो ये मेरे पास 50 मीटर्स दिया गया है. 2 के फ्रेम में 1 का वेलोसिटी कुछ अगर ऐसे है, इफ आई कैन फिगर आउट दिस एंगल अल्फा, तो ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 sin अल्फा. सो ऑल आई नीड टू डू इज कैलकुलेट अल्फा, which is nothing but the angle that this velocity vector is making with the horizontal. So tan alpha, can I write it as velocity of 1 with respect to 2 का y component divided by velocity of 1 with respect to 2 का x component. Simple है. तो कितना हो जाएगा, velocity of 1 का y component minus velocity of 2 का y component, that is the numerator. Velocity of 1 का y component 10 root 2 sin 45 10. Velocity of 2 का y component, let me take y axis ऐसे, x axis ऐसे, 2 का y component 5 root 2 sin 45 5 divided by velocity of 1 का x component 10 root 2 cos 45 10. velocity of 2 का x component 5 root 2 cos 45 negative. वो ध्यान रखना, that is a mistake that a lot of students make, negative. तो ये आ गया 1/3. तो tan alpha 1/3 आ गया, मुझे चाहिए sin alpha, तो सिंपल है यार, वो तो पता ही है ना, ट्रायंगल मतलब तो कर लो यार खुद ही. tan alpha is 1/3, sin alpha कितना आ जाएगा, 1/√10 आ जाएगा ना, 9 + 1. ठीक है, हो गया यार. तो मिनिमम डिस्टेंस इज 50 sin अल्फा, 50/√10. कैन आई राइट इट एज 5√10. दिस इज योर आंसर. आई होप यू आर आल्सो एबल टू गेट इट, एंड इफ नॉट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कैलकुलेटिंग दिस एंगल अल्फा. प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में, जहाँ पे वेलोसिटी निकालना था फॉर द कोलिजन टू अकर. यहाँ पर भी यही कर रहे हैं. दिस इज द की. tan अल्फा को लेकर y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, फिर तो रिलेटिव का फॉर्मूला यूज करो. ठीक है, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉपिंग. तो पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने ड्रॉपिंग के बारे में बात किया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट नाउ वी हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट विद रिस्पेक्ट टू whom? Is it 0 in the ground frame or is it 0 in some other frame? It is 0. Initial velocity is 0. जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 विथ रिस्पेक्ट, मतलब इन द फ्रेम, द पर्सन हु इज ड्रॉपिंग इट. जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन ड्रॉपिंग इट. तुम सोचो, जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ कार एंड यू आर ट्रैवलिंग एंड यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट. तो किसको वेलोसिटी 0 लगेगा? तुमको लगेगा ना. यू आर द वन हु ड्रॉप्ड इट. मैं वॉक कर रहा हूं और एंड आई ड्रॉप इट, तो मुझे लगा कि वेलोसिटी 0 है. इफ आई एम वॉकिंग एंड आई ड्रॉप इट हियर बट आई कॉट इट हियर, तुमको लगेगा कि द मार्कर हैज ट्रेवल्ड, मुझे हॉरिजॉन्टली, मुझे लगेगा कि द मार्कर हैज ओनली ट्रेवल्ड वर्टिकली, बिकॉज मुझे लगेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मार्कर वाज 0. सो व्हाट डज दैट इंप्लाई इन द ग्राउंड फ्रेम? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु ड्रॉप्स इट, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट which is being dropped with respect to person 0, इसका मतलब initial velocity of object in the ground frame is equal to initial velocity of the person in the ground frame. Simple. तो ये relative 0 हो जाएगा. ठीक है. Alright. So when you have questions about dropping, काफी बार it is useful not to analyze in the ground frame but to analyze in the frame of the person who drops it. बिकॉज पर्सन के फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, वो पता चल जाता है अपने को. सो एक एग्जांपल बता दो कहां पे ये यूजफुल है. सपोज यू हैव एन एलिवेटर, लेट्स से इट्स गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, लेट्स से a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एंड यू हैव अ पर्सन, लेट्स से इट ड्रॉप्स हिज फोन. ठीक है, द पर्सन ड्रॉप्स अ फोन and let's say height h है between the phone and the floor of the elevator. तो पूछा time to hit the floor.
कितना होगा। अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एलिवेटर का वेलोसिटी पता नहीं मुझे। व्हेन यू ड्रॉप द फोन इन द ग्राउंड फ्रेम, फोन ऊपर जा रहा है इनिशियली, क्योंकि एलिवेटर का वेलोसिटी अगर ऊपर रहेगा तो फोन ऊपर जाएगा इनिशियली, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज सेम। एलिवेटर एंड पर्सन आर द सेम फ्रेम, पर्सन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। फिर एलिवेटर भी ऊपर जाएगा, मुझे किसी का कुछ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी नहीं पता मुझे ग्राउंड फ्रेम में। बट इन द एलिवेटर फ्रेम और इन द पर्सन फ्रेम, बोथ आर द सेम थिंग। द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फोन का, एंड आई ऑल्सो नो द डिस्प्लेसमेंट विच इज h, बिकॉज पर्सन के फ्रेम में एलिवेटर स्टेशनरी हो गया। दैट इज द यूजफुल नेचर of going into the frame of the person who drops the object. So in the person frame, person या elevator frame दोनों एक ही चीज है। In the person या elevator frame, initial velocity of the phone is 0. This is with respect to the person, ठीक है, और elevator ऐसे लिख लेता हूँ, with respect to elevator लिख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज h। मुझे पता है एलिवेटर तो स्टेशनरी है, एलिवेटर फ्रेम में फोन को कितना नीचे ट्रैवल करना है टू हिट द फ्लोर, h। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? नाउ एज सून एज द पर्सन लीव्स द फोन, तो ड्यूरिंग द मोशन देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग विच इज ग्रेविटी। कॉन्टैक्ट तो लूज हो गया, एज सुन एज कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट फ्रॉम द हैंड, फिर एक ही फोर्स लगता है। हैंड कैन नॉट अप्लाई हवे के थ्रू, अपन वो एक्समैन नहीं है, क्या नाम है उसका, मैग्नेटो कुछ नाम है ना, वी कैन नॉट अप्लाई अ फोर्स ऑन द फोन विदाउट कॉन्टैक्ट। तो एज सुन एज द हैंड इज लेफ्ट, द फोन इज लेफ्ट, तो ड्यूरिंग द मोशन देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग विच इज ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ऑफ द फोन is g downwards ये ग्राउंड फ्रेम में। अब एलिवेटर ऊपर a नॉट से जा रहा है, फोन नीचे g से जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, तो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, g plus a naught। So I know everything in the frame of elevator now, and time तो सेम होता है कोई भी फ्रेम में। तो I know displacement, I know initial velocity, I know acceleration। हो गया ना यार, कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? क्या चाहिए मुझे? टाइम चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। सो आई हैव डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन t g प्लस a नॉट इनटू t स्क्वायर्ड। तो मेरे पास t आ जाएगा √2h डिवाइड बाय g प्लस a नॉट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज यूजफुल टू गो इन द फ्रेम ऑफ द पर्सन हु ड्रॉप्स इट। देख लो। Now let's look at a very nice question. यहाँ पर एक hot air balloon है. So hot air balloon is rising up with acceleration a naught, constant acceleration दिया गया. And a person is standing and person drops a stone. Person drops stone 1 at t equal to 0. Then the person drops stone 2 at t equal to t naught. Find the separation between the stones at t equal to 3t naught. G भी पता है अपने को, G के टर्म्स में आंसर निकालना है। यहाँ पे we do not know the velocity of the hot air balloon at t equal to 0. वो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट। हो सकता है इट ऑलरेडी हैज सम वेलोसिटी एट t equal to 0 इन द ग्राउंड फ्रेम, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ग्राउंड फ्रेम विल बी डिफिकल्ट फॉर दिस टू सॉल्व, मतलब इट विल बी लॉन्ग एज कंपेयर टू द फ्रेम ऑफ द पर्सन या द हॉट एयर बलून। सो आई सजेस्ट यू ट्राई इट आउट, गो इन द फ्रेम ऑफ द पर्सन एंड ट्राई इट आउट। g और a नॉट और t नॉट वगैरह के टर्म्स में आंसर आएगा, ट्राई करो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गो इन द फ्रेम ऑफ द पर्सन या फ्रेम ऑफ द हॉट एयर बलून। बिकॉज बलून फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0 है, दोनों स्टोन्स का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पे फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया, पूछा क्या गया है? फाइंड द सेपरेशन एट t इक्वल टू 3t नॉट। तो फर्स्ट स्टोन कितना टाइम ट्रेवल किया? 3t नॉट। तो फर्स्ट स्टोन कितना नीचे गया रहेगा? आई नो द इनिशियल वेलोसिटी 0, इफ आई कैन फिगर आउट द एक्सेलरेशन आई कैन आल्सो गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 1, करेक्ट? सो can I write displacement of stone 1 in the balloon frame?
It is exactly like the previous situation जहाँ पे phone was dropped in the elevator. Can I write displacement or rather acceleration of the acceleration of 1 with respect to the balloon? ऐसा लिख रहा हूँ मैं. अगर मैं downward positive ले लूँ, will be acceleration of 1 minus acceleration of balloon. Acceleration of 1 ground frame में कौन सा force लग रहा है? सिर्फ gravity, तो free fall कर रहा है. तो g downwards minus acceleration of balloon is minus a naught. करेक्ट. अच्छा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बलून है, कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इज 0, तो हाफ एटी स्क्वायर बड़ी हाफ इनटू g प्लस a नॉट इनटू कितना टाइम के लिए ट्रैवल किया? 3t नॉट. ठीक है. एंड स्टोन 2 वाज ड्रॉप्ड एट t इक्वल टू t नॉट. तो स्टोन 2 कितना ट्रैवल करेगा, कितने टाइम के लिए ट्रैवल करेगा? 2t नॉट. और उसका एक्सेलरेशन फिर से यही चीज आएगा ना, स्टोन 2 भी फ्री फॉल कर रहा है ग्राउंड फ्रेम में. सो कैन आई राइट स्टोन 2 विद रिस्पेक्ट टू बलून, डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाफ इनटू इनिशियल वेलोसिटी 0, सो हाफ at स्क्वायर, और t कितना अभी? 2t नॉट. You have to understand that in the balloon frame, the initial position of both the stones is the same because balloon तो stationary है ना. That is the power of relative motion. Ground frame में balloon भी ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया पता नहीं, कितना velocity है पता नहीं. But in the frame of the balloon, balloon stationary है. तो balloon को क्या लगेगा, person को क्या लगेगा? दोनों stone इसी point से drop किया. Stone 1 ने इतना travel किया, Stone 2 ने इतना travel किया, दोनों का difference is my answer. Separation जो है, that is frame independent. If I ask you what is the separation between the two ends of the marker, that is the length of the marker, whether I'm moving or whether I'm stationary, ये length तो एक fixed value है ना, ठीक है. So the length between two points और two particles के बीच का जो length है, that is independent of frame of reference. So balloon frame में calculate करूंगा, वही आंसर अपने ground frame में भी हो जाएगा separation का. ठीक है, तो बस इनको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना हो गया मेरा आंसर. सो सेपरेशन वुड बी जस्ट सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू g प्लस a नॉट इनटू ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 5t नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना. ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया. 5/2 g प्लस a नॉट इनटू t नॉट स्क्वायर. ठीक है, आंसर इज ओके. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन सी वेयर एंड व्हाई रिलेटिव मोशन इज सो यूजफुल. देख लो. नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जहां पे ग्राउंड फ्रेम इज मोर यूजफुल. तो एक बलून है, वंस अगेन हॉट एयर बलून है, दैट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a नॉट, एंड एट सम इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बलून इज v नॉट, अ पर्सन ड्रॉप्स द स्टोन, टाइम टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम में हिट करेगा. यहां पे बलून फ्रेम इज नॉट यूजफुल. व्हाई? Because time to hit the ground पूछा है, and you know the displacement h in the ground frame. यहाँ पे displacement ground frame में question में has been given to us. Then use ground frame. That is how you figure out which frame is more useful. ठीक है. पिछले question में we do not know the velocity of the balloon. We do not know the displacement of the stones in the ground frame. So ground frame was not useful. Here we know the velocity of the balloon and we know the displacement of the stone in the ground frame. So that is why ground frame will be more useful in this question. यहाँ पे as soon as the person leaves the stone का acceleration कितना होगा ground frame में? g downwards. So a naught balloon जो acceleration से जा रहा है, that is not of any use to us. That is only to fool you. If you get confused, then the question setter has been successful. So we have to be very careful in the question. ये a naught जो दिया है, that is just तुमको उल्लू बनाने के लिए है. Because as soon as the stone leaves the hand, the only force acting in the ground frame is gravity. तो बलून का एक्सेलरेशन कितना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वेलोसिटी से फर्क पड़ेगा, बिकॉज वी हैव सीन कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन हु ड्रॉप्स इट. द इंस्टेंट व्हेन द पर्सन ड्रॉप्स इट, कितना वेलोसिटी है पर्सन का? v नॉट अपवर्ड्स. तो स्टोन का भी ग्राउंड फ्रेम में v नॉट अपवर्ड्स है. ठीक है. सो इन द ग्राउंड फ्रेम अगर मैं देखूं तो स्टोन का वेलोसिटी v नॉट अपवर्ड्स है. तो अगर someone is standing on the ground, the person will observe the stone going up and then coming down. ठीक है. So ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. Now this is a very standard kinematics problem. Free vertical free fall. कितना टाइम लगेगा to hit the ground?
क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आई हैड शोन यू अ वेरी शॉर्ट मेथड विदाउट द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक. डायरेक्टली लिख लो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ये h है, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल एंड फाइनल, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. हो गया. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड. अभी यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. वी यूज्ड इट इन वर्टिकल फ्री फॉल इन लेक्चर नंबर 3. फिर प्रोजेक्टाइल में भी यूज किया था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी यूज किया था, सब जगह यूज किया है. तो you should be very comfortable with this method where we avoid the quadratic altogether in order to calculate the time. ठीक है, देख लो. अच्छा, अभी एक प्रोजेक्टाइल इन्वॉल्व करते हैं इसमें, ड्रॉपिंग में. देखो यार मेरे पास, बताओ ये क्या है मेरे पास, एक कौवा है. ठीक है, तो कौवे को कान तो रहता होगा, आई डोंट नो. ठीक है. हाँ, सो द क्रो इज फ्लाइंग at a velocity v naught, let's say at an angle theta to the horizontal. ऐसे उड़ रहा है कौवा. And crow drops something. And यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो जो ड्रॉप करता है जो भी है वो इसके टकले पे जाके गिरता है. तो लेट्स से जहां से ड्रॉप किया और पर्सन के हेड के हाइट लेवल से वो डिफरेंस h है, वर्टिकल हाइट डिफरेंस h. सो क्वेश्चन पे पूछा गया हाउ फार इज द पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द क्रो ड्रॉप्स. ठीक है, तो ये पूछा हुआ है. ठीक है, ट्राई कर लो यार. g के टर्म्स में आएगा, इनिशियल v नॉट पता है, एंगल थीटा पता है. ट्राई करो. हाँ, इसका पैर नहीं बनाया मैंने. ओके, सो in the ground frame when the crow drops whatever he drops, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका भी वेलोसिटी वही हो जाएगा जो क्रो का है. वही तो है कॉन्सेप्ट, जो ऑब्जेक्ट जिसको ड्रॉप किया है उसका वेलोसिटी एंड जो पर्सन या कौवा ड्रॉपिंग इट, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा. सो इसका भी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v नॉट हो गया एट द सेम एंगल थीटा. वेक्टर इक्वेट किया अपन ने, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पर्सन इनिशियली. तो क्या करेगा, ग्राउंड फ्रेम में g डाउनवर्ड्स है, ऐसा वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन. और इसके टकले पे गिरता है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया इफेक्टिवली, दे आर आस्किंग अस द रेंज. एंड रेंज इज वेरी सिंपल. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, कितना हाइट ट्रेवल कर रहा है, h. नाउ वंस अगेन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द क्वाड्रेटिक. यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द मेथड दैट आई हैड शोन यू, क्विक मेथड टू गेट द रेंज. फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. द रेंज विल बी v नॉट cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी into time of flight. और time of flight में directly लिख सकता हूँ change in the y component of velocity divided by g. change in y component velocity कितना है, initially v naught sin theta ऊपर की तरफ, finally third equation v naught sin theta square plus 2gh नीचे की तरफ, इसलिए मैंने ऐड कर दिया चेंज, वेक्टर चेंज लिखने को, मैग्नीट्यूड चाहिए बस, डिवाइडेड बाय g. हो गया मेरा रेंज, हो गया बेसिकली. वंस अगेन ये सेम मेथड है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था और बहुत बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में तुमको बता दिया. नाउ यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, देखो, और यू कैन यूज दिस कैलकुलेशन इन डे टू डे लाइफ टू अवॉइड एनी ड्रॉपिंग्स बाय बर्ड्स. देख लो. नाउ लेट्स लुक एट रेन मैन प्रॉब्लम्स, और रेन वुमन भी हो सकता है. इट्स 2022, आई डोंट वांट टू गेट कैंसल, किसी को ऑफेंड नहीं करना, सो आई लेट मी कॉल इट रेन person problems. ठीक है, तो the whole idea in this in these type of questions is they will ask at what angle should you hold the umbrella so that you do not get wet. तो बारिश गिर रहा है, you're walking or you're running, at what angle should you hold the umbrella? So the concept is कि you have to look at what angle is the rain falling according to you. If you are walking, you are the observer, you observe कि rain किस angle पे गिर रहा है, उस angle पे umbrella पकड़ना है, that's it. तो basically with respect to the observer who's walking or running, we have to find the velocity vector of the rain and then get the angle with the vertical. बस उसके opposite अपने को umbrella पकड़ना है. That is the whole concept. So देखते हैं. अच्छा, तो मैं just example से शुरू करता हूँ. These kind of questions are actually very straightforward if you write them, write everything in vector form. I cap, J cap में सब velocities लिख दिया.
इट्स वेरी सिंपल, देख लेते हैं. So suppose a person is running, let's say 10 meter per second, and let's say rain is falling at 5 meter per second. ठीक है. तो the question usually asks at what angle with the vertical should you hold the umbrella. So let me just choose my axis. Let's say x axis ऐसे, y axis ऊपर ले रहा हूँ. You can take y axis downward also, it doesn't make a difference. So ये velocity of person is 10 I cap, velocity of rain is minus 5 j cap. So velocity of rain as observed by the person. The person जब भाग रहा है, भाग रही है, तो person क्या observe करेंगे? That we have to check. We have to just figure out at what angle is the rain coming according to the person. So velocity of rain with respect to the person कितना हो जाएगा? Minus 5 j cap, minus 10 I cap. So I'll have minus 10 I cap, minus 5 j cap. So if I just want to plot that vector, minus 10 I cap, minus 5 j cap, मतलब वो ऐसे कुछ हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना. And usually they ask you the angle with the vertical. तो अगर मैं ये अल्फा बोलूँ, so tan alpha would be what? X component में Y component ना, मैग्नीट्यूड ही चाहिए. So tan alpha is 2. So that's how the person should hold the umbrella at an angle of tan inverse 2 with the vertical. ठीक है. इसमें अगर सपोज विंड भी ब्लो कर रहा है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, if wind starts blowing, इसका मतलब जो velocity of rain है, see they'll give you velocity of rain in absence of wind is 5 meter per second downward. Now wind starts blowing, let's say velocity of wind is let me say 2 meter per second to the right. तो resultant velocity of the rain होगा, that will now become 2 I cap minus 5 j cap. The velocity of wind just gets added to the rain velocity. That's what we have to remember. So now velocity of rain with respect to person कितना हो जाएगा? बस वही सेम चीज सब्ट्रैक्ट करना है. 2 I cap minus 5 j cap minus 10 I cap करता हूँ. इसमें actually let me give you velocity of wind as 12 meter per second just for a variation, because यहाँ पे देखो इस केस में the person has to hold the umbrella ahead of him. इस केस में देखते हैं, that's why I just changed this value. I wanted to show you the other case. तो velocity of rain ये आ गया, और velocity of rain with respect to person कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो ना, तो कितना आ जाएगा? 2 I cap minus 5 j cap, करेक्ट. तो अब जब मैं प्लॉट करूंगा ये, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बिकॉज x कंपोनेंट पॉजिटिव है ना. सो velocity of rain with respect to person ऐसे आ जाएगा, करेक्ट. एंड दिस एंगल अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा? x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट, सो 2/5 मैग्नीट्यूड ही चाहिए. So tan inverse 2/5 पे होल्ड करना पड़ेगा. एंड नाउ द पर्सन इज रनिंग फॉरवर्ड, ऐसे भाग रहा है, बट द अम्ब्रेला हैज टू बी हेल्ड बिहाइंड. ठीक है, ऐसे पकड़ के उसको चलना पड़ेगा या भागना पड़ेगा. 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा तो भाग ही रहा है. उसेन बोल्ट 10 मीटर पर सेकंड से जाता है ना, अप्रॉक्स 100 मीटर्स इन 10 सेकंड्स या 9 पॉइंट समथिंग सेकंड्स. ठीक है, उसेन बोल्ट ही है मान लो, तो उसेन हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला बिहाइंड हिम in this case and ahead of him in this case. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, बट ये पहले लिख लो. ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं रेन प्रॉब्लम्स पे. सो एक पर्सन है, person is running or walking at speed of vp. When vp is 8 kph, when the person is running at 8 kph, the rain appears to fall vertical, appears to the person to fall vertical. When the person increases the speed to 12 kph, rain appears to fall at 30 degrees to the vertical. So find the speed of the rain. तो speed of the rain मतलब किस फ्रेम में? कुछ बोला नहीं, मतलब ग्राउंड फ्रेम. Okay, so ऐसे क्वेश्चन में we always have to assume a general situation where the rain is falling at an angle. So let's assume, let me say ये मेरा x axis, ये y axis, ठीक है. So let's say always start all rain problems with this assumption कि let rain velocity be equal to some vx I cap plus vy j cap. Obviously vy नेगेटिव होगा, नीचे गिरेगा. ये ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है. तो फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन पर्सन इज 8 kph, तो
फर्स्ट सिचुएशन में VP is 8 I cap. In that case rain appears to fall vertically. इसका मतलब अगर रेन वर्टिकली गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन तो उसका कौन सा कंपोनेंट पता है? वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0. तो कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0. तो वेलोसिटी ऑफ रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज 8. तो मुझे डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया 8. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से वील गेट द y कंपोनेंट. When velocity of person is 12 kph, rain appears to fall at 30 degrees to the vertical. So if you want, you can pause the video and try it out now. Write the velocity of rain with respect to person. तुमको 8 तो ऑलरेडी पता है, x तो बस एक vy के टर्म्स में आएगा और उसका एंगल विद वर्टिकल 30 डिग्री कर दो. ट्राई करो, थोड़ा सा केयरफुली करना है. देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है. सो सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना होगा? Velocity of rain is now 8 I cap plus V by j cap, and velocity of person is now 12 I cap. तो ये कितना हो जाएगा? -4 I cap plus V by j cap. अब इसका एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल है, तो जस्ट फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द वेक्टर. ये x, ये y. तो -4 I cap मतलब ऐसे 4 है x कंपोनेंट और V y नेगेटिव ही होगा ना, नीचे गिरेगा. तो दिस इज मॉड वी वाई बोल दो. और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल. तो हो गया यार, tan 30 इज 4 डिवाइड बाय मॉड वी वाई. सो यहाँ पे लिख लेता हूँ tan 30 इज 4 डिवाइड बाय मॉड वी वाई. तो मॉड वी वाई कितना आ जाएगा? 4√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो मेरा पूरा रेन का वेलोसिटी हो जाएगा कितना था? x कंपोनेंट 8. 8 I cap minus 4√3 j cap because Vy नेगेटिव होगा. हो गया ना यार. मुझे क्या पूछा क्या गया? स्पीड हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया. तो वो तो सिंपल है. तो स्पीड वुड बी √8² प्लस 4√3 द होल स्क्वायर्ड. तो कितना आ जाएगा? तुम ही खुद कर लो. एंड आ जाएगा 4√7. हाँ, इसमें एक्चुअली एक चीज बस केयरफुली करना. यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड नहीं, क्या दिया मैंने? kph दिया ना, तो सब कुछ kph में है. ये kph था, ठीक है, मीटर पर सेकंड नहीं था. वो यूनिट्स का ध्यान रखना यार. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक आई मेड हियर. वो मीटर पर सेकंड नहीं, kph था. क्वेश्चन में देखना क्या दिया, kph दिया होगा. ठीक है. तो स्पीड फाइनली ये कैलकुलेशन खुद कर लो यार, 4√7 आ जाना चाहिए. ओके, देखो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Just write down, start off with this velocity vector of rain is vx I cap plus vy j cap. दो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए लिखो इक्वेशन. दैट्स इट. कैलकुलेट रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, देन यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन. देख लो. एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. सो अ पर्सन इज वॉकिंग डाउन द इंक्लाइन with speed 2√3 meter per second. So person has to keep the umbrella vertical when he's walking down with speed 2√3 meter per second. So in order to not get wet, the umbrella should be vertically held. Speed of the rain is 5 meter per second. ये जो speed of rain 5 meter per second ऐसा दे दिया, मतलब ground frame में दिया जाए. कुछ नहीं बोला, मतलब ground frame. At what angle should the person hold the umbrella when the person is at rest? Okay, so basically they're asking us the angle that the rain is making in the ground frame, because ground frame में person will be at rest. ठीक है, try करो, फिर you can take a look at my solution. ठीक है. So let me choose my x-axis and y-axis as this. And इसमें क्या बोला गया कि क्वेश्चन में बोला गया कि the person has to keep umbrella vertical. इसका मतलब velocity of rain with respect to person is vertical when the person is walking down with speed 2√3. तो इसका x कंपोनेंट कितना हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, बट मुझे फिर दूसरा कंपोनेंट पता चल गया बिकॉज x कंपोनेंट 0 हो गया ना. करेक्ट. सो वेलोसिटी ऑफ रेन का x कंपोनेंट आ गया, शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन का x कंपोनेंट. तो ये रिलेटिव 0 हो जाएगा. और पर्सन का x कंपोनेंट कितना है? इज वॉकिंग डाउन विद 2√3. वेलोसिटी ऑफ पर्सन मैग्नीट्यूड इज 2√3, एंगल एट 30 डिग्रीज. तो x कंपोनेंट कितना होगा? 2√3 cos 30. तो दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ रेन का x कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड आ गया. हो गया बिकॉज I know that velocity of rain का x component 3 मीटर पर सेकेंड है.
and velocity of rain in the ground frame, speed of rain in the ground frame कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड. सो y कंपोनेंट कितना हो गया 4 -4, नीचे गिरेगा ना रेन, ऊपर थोड़ी जाएगा. सो 3 मीटर पर सेकेंड -4. This is the way the rain is falling in the ground frame, and tan alpha would be nothing but 3/4. ठीक है. ठीक है. Let me just write velocity of rain का y component is -4. ये पता चल गया अपने को because total speed 5 है. 3, 4, 5 Pythagoras. Simple है. Just follow the process. It's very simple. Such questions. These are free marks if they come in the exam. And that's it for today. I'll see you at the top. Good night.